organic agriculture and genetically modified plants. What is GMO? It is asked. It is genetically modified plants. Then what are the advantages of genetically modified plants? A list is given. So remember that list. Then after that, remember about Bacillus thuringiensis. It is given there. Insect resistant transgenic plant. So Bacillus thuringiensis, bacteria which is there, it produces a toxin that is thurioside. And this thurioside, when it enters into the gut, midgut of the insect, it gets swollen and the insect will die. So यहाँ पे जो लिखा है ना इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, उसके नीचे देखो उन्होंने एक लिस्ट दिया है that it kills insects and the larva of. They have given tobacco, budworm, armyworm, coleopterans, that is beetles, diphtherians, that is flies and mosquito, and this protein is called as insecticidal protein. तो उसको underline करो. And that cry gene, which are the cry genes? Cry1AC and Cry2AB. Coding for toxin are isolated from Bacillus thuringiensis. तो वो जीन के नाम याद रखो. Okay. Then afterward are उसके नीचे pest resistant plant. Got it? Pest resistant plant. I can't see the number, page number, but do you got this pest resistant plants? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो पहला ही लाइन nematode. I cannot pronounce it. That nematode infects the roots of tobacco plants and causes great reduction in the yield. तो वो जो nematode का नाम है ना उसको underline करो. वो नाम कभी कभी पूछते हैं. And this infection is prevented using the process of RNA interference, RNAi. And this RNAi is the phenomena of cellular defense in eukaryotes, which involves silencing of a specific messenger RNA, whose translation is prevented by binding of a complementary double-stranded RNA. तो वो याद रखो क्या है वो. Your RNA interference means what? RNA interference means that messenger RNA which is there, which is prepared during transcription, उसका translation होता ही नहीं है. क्यों नहीं होता है? Because that translation is prevented by binding of a complementary double-stranded RNA. और एक RNA उसको bind होता है, तो naturally translation will not take place, and that is called as RNA interference. तो उसको underline करो. Then the nematode specific genes were ये हम लोगों ने RNA interference नहीं किया है, हाँ, इसलिए मैंने explain किया कि RNA interference means what? RNA interference means it is the cellular defense in eukaryotes. और उसमें क्या होता है? मैसेंजर RNA तैयार होगा लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होगा, वो आपको याद रखना है. Then biotechnological applications in medicine. अभी मेडिसिन के बारे में देखो, हम लोग देखेंगे. उसमें वो पेज पे तो कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट पेज पे देखो, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन मिल गया. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, डू यू गॉट इट? दिस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. Yes, ma'am. उसमें दूसरा पॉइंट देखो, earlier insulin was extracted from pancreas of slaughter pigs and cattle. तो pigs and cattle को underline करो. Then चौथा point important है from exam point of view. Insulin is formed of two polypeptide chains A and B interlinked by disulfide bridges, and it is synthesized in mammals as a prohormone. The prohormone contains an extra stage known as C-peptide, which is removed during maturation stage. तो वो दो है chains A and B, वो याद रखो. Actually A और B में कितने कितने अमीनो एसिड से वो भी लिखा होगा शायद, और वो नहीं होगा समझो CBSE के बुक में, तो जरूरत नहीं है. Then
an American company, Eli Lilly का नाम ध्यान रखो, in 1983 prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chain. और बाद में by infusing it into E. coli, we can obtain insulin. Now see here, they have shown here pro-insulin diagram है A और B का, वो छोड़ो, और C पेप्टाइड चेन जो वो निकल जाती है. पहले डायग्राम में देखो उन्होंने दिया है कि A और B चेन है और बीच में प्रो इंसुलिन है, और बाद में ये प्रो इंसुलिन निकल जाता है, बीच वाला वो पेप्टाइड C वाला बॉन्ड है वो निकल जाता है, वो उन्होंने दिया है. उसके बाद ये डायग्राम है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो डायग्राम है वो कभी कभी rarely it is asked in diagram based question. कुछ भी ऐसे डायग्राम देंगे और आपको लेबल करना पड़ेगा कुछ तो, कि ई कोलाई कौन सा है, ह्यूमन सेल कौन सा है, देन कैमेरिक डीएनए, वैसे कुछ तो आपको उसमें लेबल करना पड़ेगा. तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आप याद रखो. उसके बाद दिया है ल्यूसीन प्रोडक्शन. ल्यूसीन प्रोडक्शन मैंने तो देखा नहीं है कि कुछ उसके ऊपर कुछ आता है. ल्यूसीन नहीं है, वैक्सीन प्रोडक्शन. मेरे इसमें ना बराबर नोट्स भी आए नहीं है. वैक्सीन प्रोडक्शन, बट रिमेंबर फर्स्ट वैक्सीन वाज प्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेन्नर in 1796 and it is an attempt to provide protection against smallpox. ये याद रखो. मिल गया वो आपको? मिल गया वैक्सीन? मैम. हाँ, तो वो वैक्सीन प्रोडक्शन फर्स्ट was done by Edward Jenner and it is for protecting against smallpox. वो याद रखो. Then उसके नीचे प्लांट एज अ रिएक्टर ऑफ वैक्सीन्स. उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं. उसमें कुछ नहीं है, छोड़ दो वो. देन जीन थेरेपी. जीन थेरेपी मैंने कल ही बोला ना आपको कि इफ पॉसिबल, if the doctors come to know that any problem will be there in the child, then that faulty gene is replaced with normal gene. और वो जो है वो कब किया था? In 1990, a 4-year-old girl was given the first clinical therapy for adenosine deaminase deficiency. This was done in the beginning. नाम याद रखना है सिर्फ. Now उन्होंने वो जीन थेरेपी कैसे किया है वो दिया है. Just go through that, it may not be asked. Then molecular diagnosis, early diagnosis, ELISA's test जो है वो याद रखो. Sorbent assay, ELISA test. Then PCR दिया है, polymerase chain reaction, उन्होंने explanation दिया है वो पढ़ो. उसके बाद transgenic animal. Transgenic animal, actually we have studied this particular part in that another chapter, enhancement in food production. लेकिन यहाँ पे भी दिया है तो ठीक है, चलो देख लो क्या क्या है. उसमें उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं और डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है. ओके, दैट मीन्स विच एग्जाम्पल्स आर देयर, फॉर व्हाट रीजन दे आर प्रोड्यूस, वो सब याद रखना है. स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिसीज, फिजियोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, देन वो वैक्सीन सेफ्टी, ये सब एक बार पढ़ के ले लो बस, और कुछ नहीं. उस पर कुछ आएगा कि नहीं क्वेश्चन मुझे पता नहीं. देन एथिकल इश्यूज, उसमें व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEAC, वो आपको याद रखना है. जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, दैट मीन्स व्हेनेवर एनीथिंग इज डिस्कवर्ड it should be submitted to this committee, and that committee only when will give approval, then only you can bring that product in the market. तो वो आपको याद रखना है. देन आपको पता है बायोपायरेसी, बासमती राइस और टर्मरिक का एग्जाम्पल आपको याद है, तो वो बायोपायरेसी, तो वो याद रखना है. देन व्हाट इज बायोपायरेसी, वो भी याद रखना है. व्हाट इज बायोपेटेंट, बायोपेटेंट आपको पता है. और shall I explain this biopatent and biopiracy, or you know that? आपको पता होगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी. बायोपेटेंट, बायोपायरेसी पता है ना आपको?
Yes, हाँ मैम. Akanksha, are you there? Yes, student. Anybody? हाँ, अरे आप आंसर नहीं देते तो मुझे लगता है कि आपको पता समझा है. है. हाँ, तो नहीं चाहिए ना बायो पेटेंट और बायो पायरेसी, वो आपको पता है ना. हाँ मैम. हाँ यस. हाँ, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अभी. क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. कंसेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम्स. पहले 5 क्वेश्चन. हाँ मैम. हाँ, पहले 5 करो और बाद में मुझे बोलो कि हो गया, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं. मेरा आवाज आपको सुनाई देता है? मैम हम हाँ, हमारे इधर मैम लाइट गया है, इसलिए नेट अच्छे से चल रहा नहीं है. अरे बाप रे, पूरे काटेमनोली में लाइट नहीं है? हाँ मैम. हाँ मैम, कल्याण ईस्ट में ही लाइट नहीं है. अच्छा, तो कोई भी बच्चों को यही प्रॉब्लम है? तो मोबाइल डेटा चालू किया होगा ना आप लोगों ने? हाँ मैम, वही उसमें हम लोग बोलते हैं, वो आपको थोड़ा सुनाई नहीं देता है ऐसा. नहीं, अभी मैं क्या तो है. करती हूँ, मैं मेरा वीडियो बंद करके मैं मेरे मोबाइल में ही, क्योंकि लैपटॉप मैंने सामने रखा है ना, इसलिए मैं मेरा दूर रखती हूँ मोबाइल. तो अभी मैं लैपटॉप बंद करके मेरे मोबाइल में ही क्वेश्चन खोलती हूँ और फिर आंसर देखेंगे. फिर मुझे सुनाई देगा, मैं हाथ में मोबाइल लेगी तो. हाँ, तो मैं नहीं मैम, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही ठीक है. ठीक है, फिर चलो. हाँ. तो आप पहले 5 क्वेश्चन कर दो और मुझे बोलो कि हो गया, फिर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. यस, वन मोर पॉइंट. कल ना हम लोगों ने वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस अपस्ट्रीम प्रोसेस वो किया नहीं था फर्मेंटर का. वो एक्सप्लेन करना है क्या आपको? यस, कल हम लोगों ने वो फर्मेंटर का है ना, अपस्ट्रीम प्रोसेस डाउनस्ट्रीम प्रोसेस वो किया नहीं है. वो आपको मैं अभी करूं या एनहांसमेंट के साथ कर दूं? एनहांसमेंट के साथ ही हाँ, कर दो क्योंकि मैम. क्योंकि उधर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स ऐसे है ना, माइक्रोब्स इन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग. तब भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि उधर भी वो फर्मेंटर है ही. तो वो टाइम एक्सप्लेन करूंगी, चलेगा? तो क्वेश्चन स्टार्ट करें डायरेक्टली? आप पहले 5 लेते हो, करते हो और बाद में स्टार्ट करें?
When you will complete, tell me. चालू करें. Yes, ma'am. Question 1. Identify the area not involved in biotechnology research. To create human clones. To create human clones. Correct. Because when Dolly, Dolly, sheep Dolly was first clone. Cloning of Dolly was done in the beginning. And sheep means mammal. But afterward, all nations were against this. That is, cloning should be done. And that is why ban was brought. So human cloning is not done. Very good. In which field application of biotechnology occurs? All of the above. Yes, very good. All of the above. In which of the following form the improved catalyst is produced using biotechnology? Microbe or enzyme. Microbes or pure enzyme. Then which of the following strategies cannot be considered for increasing food production? Maximum use of chemical Maximum use fertilizers. of chemical fertilizers. Yes, that we don't do. Now green revolution. कौन है father of green revolution? Who is called as father of green revolution? Norman Borlaug. Correct. Dr. Norman Borlaug. And in India? MS Swaminathan. Yes, very good. Organism. Next question. Organism whose genes have been manipulated are known as? Genetically modified organism. Yes, correct. Bt toxin is produced by? Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis. The crystals produced by Bacillus thuringiensis contain? Toxic insecticidal proteins. Toxic insecticidal protein. Now 9.1. The genes, अरे अपने 5 ही किए है ना. अच्छा ठीक है. The genes which are, हम slow जाएंगे. The genes which are responsible to, मुझे आगे का दिखाई नहीं देता है क्योंकि मेरे इसमें वो फोटो उनका अच्छा नहीं है, PDF बराबर नहीं भेजा है. उसका आंसर क्या हो सकता है क्वेश्चन 9 का? Cry2AB. ऑप्शन बी. नहीं, ये ना इसका देखो ना, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है Cry1AC एंड Cry2AB और CBSE के बुक में भी वो ही दिया है.
ऑप्शन समझो पीछे उन्होंने क्राई टू AB और क्राई 1 AB लिखा होगा ना, वो रॉन्ग आंसर है. A is correct. Cry 1 AC and cry 2 AB. That is the correct answer. मैंने CBSE का बुक भी चेक किया है, वो ही आंसर है. तो 9 का A, यानी पीछे दिए हुए जो आंसर है वो हमेशा करेक्ट रहते हैं, ऐसे नहीं है. आपको कंफर्म करना ही पड़ेगा. पीछे देखो आप चाहिए तो, लेकिन कंफर्म करो. नाउ क्वेश्चन 10. मैं पढ़ नहीं सकती क्वेश्चन क्योंकि आधा ही मेरे इस पे PDF में आ गया है. Which one of the following statement is wrong in relation to transgenic BT cotton plant? Question number 10. crop yield loss due to attack by bacillus. क्या कौन सा? Option A. Crop yield loss due to attack by Bacillus thuringiensis bacterium is reduced. Crop yield loss. हाँ, loss is reduced. Correct, correct, correct. Then 11. Dried spores of bacillus thuringiensis. Dried spores of Bacillus thuringiensis are spread on its ये है, वैसे स्पोर भी करते हैं Bacillus thuringiensis के. नहीं, but dried spores of Bacillus thuringiensis, no, they are not spread, but we pass it on through a recombinant DNA technology only. So A is correct. 11 का A is correct. Now 12. Question number 12. मेरे इसमें क्या हो गया, वो माधुरी मैडम ने ना फोटोग्राफ बराबर भेजा ही नहीं है, मुझे सब दिखाई नहीं देता है. In BT cotton, the BT toxin present in plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to, हाँ ये पता है मुझे. Alkaline pH of the insect gut. Correct. Alkaline pH of insect gut. Assertion reason वाला क्वेश्चन हम लोगों को नहीं आता है, वो छोड़ दो. 14 अभी 14 भी assertion reason है, छोड़ दो. 15 fungi. Yes, very good. Remaining one they can. Now next one nematode वाला आ गया. अरे मैंने आंसर ही बोल दिया. Nematode. Nematode. उसके आगे वाला, एक मिनट. Which part of the tobacco plant is infected by that nematode? नाम जो है ना वो. Root. Then next 18. RNA Interference, correct. Then 19. RNA interference. RNA interference. Then 20. Option B. RNA involves the silencing of. Which one? Option D. RNA involve the silencing of specific mRNA due to presence of complementary. हाँ, सिंगल स्टैंडर्ड RNA नहीं है, वो डबल स्टैंडर्ड RNA है ना, इसलिए D इज करेक्ट. लेकिन वहां डबल स्टैंडर्ड लिखते तो वो करेक्ट हो जाता था. देन 21 से 25 करो. 21 to 25 solve it and tell me. 22 करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 1 and 2 वो वैसे वाले हम लोगों को नहीं पूछते हैं. एक्चुअली 22 भी कर सकते हैं क्योंकि वो असर्शन रीजन नहीं है, तो आप करो वो भी 22. क्वेश्चन 22 भी कर लो. हाँ,
और 5 हो गए तो मुझे बोल देना। हो गए हैं? 5 क्वेश्चन हो गए क्या? हाँ मैम। तो 21, use of a complementary RNA molecule to prevent another mRNA molecule from participating in translation, thereby preventing, उसका क्या आंसर होगा? RNA interference. करेक्ट। 22 आपने वो 2 स्टेटमेंट पढ़ लिए, कौन सा आंसर होगा? Is the statement 1 correct? RNAi takes place in all prokaryote and eukaryotic organism as a method of cellular defense. Is it correct? रॉन्ग है मैम। No, क्योंकि हाँ रॉन्ग है, क्योंकि प्रोकैरियोट में ये डिफेंस का सिस्टम नहीं है, ओनली इन यूकैरियोट्स. So statement 1 is wrong and statement 2 is correct. RNA interference is a pre-translational process. So number 2 वाला statement correct है, तो 1 is wrong, 2 is correct. लेकिन ऐसा दिया ही नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन बी सिलेक्ट करेंगे, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. 1 के बारे में उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, दैट इज अवर आंसर. Now which of the following is involved in silencing specific messenger RNA? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल। क्या होगा? ऑप्शन डी। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मोलेक्यूल. और वो आरएनए मोलेक्यूल कैसा होना चाहिए? सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड? डबल स्ट्रैंडेड। Correct. Now 24, the vector used to insert nematode specific genes into the host plant. Agrobacterium. Agrobacterium. Then match the following. अभी मैच द फॉलोइंग में एक या दो आंसर आते होंगे ना, तो भी आप ये कर सकते हो. ऑप्शन डी। तब कभी कभी एक सब आंसर नहीं आते अपने को. अभी समझो मुझे मेल स्टेरिलिटी नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सब मुझे आ रहा है, तो मैं कर सकती हूँ ना सॉल्व ऐसे. तो आप देखो और उसके मुताबिक करो. Which is the correct, which is the answer? ऑप्शन डी। Last one, हाँ correct. What are transposons? Do you know? ट्रांसपोजोन या ई में लिखा है ना, ABCDE, कॉलम 2 में ट्रांसपोजोन लिखा है, वो आपको पता है? व्हाट आर ट्रांसपोजोन्स? पता है ट्रांसपोजोन या नहीं? नहीं होगा पता तो मैं बोलती हूँ. नो मैम। हाँ, यू डोंट नो? Explain करो ना मैम. ओके,
transposons are called as jumping genes. Transposons are called as jumping genes, and they were observed in the beginning in maize plant. अभी वो साइंटिस्ट कोई लेडी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, but that lady studied or observed these transposon or jumping genes in maize plant, and for this discovery she got a Nobel Prize. And transposon means क्या? कोई भी genes maybe on the same chromosome, it will change its position, or maybe that gene will jump from one chromosome to another chromosome also. That means small amount of DNA will change its position, maybe in the same chromosome or on another chromosome. And as they change their position, the name is given to these as jumping genes. And jumping genes were discovered in maize plant first. And in human being also we get them. And in human being, they are called as ALU sequence. ALU. ALU sequence. In human being, the transposons are called as ALU sequence. Only thing at present, I don't remember the name of the scientist who discovered it. Yes, I got it. Barbara McClintock. स्पेलिंग लिख के लेना है आपको, चाहिए नाम लिख के, बारबारा. हाँ मैम. BARBARA बारबारा मैक्लिंटॉक. MC छोटा है, MC बाद में और एक सी है, वो कैपिटल है, CLINTOK. बारबारा BARBARA बारबारा. मैक्लिंटॉक का स्पेलिंग MC, C छोटा बाद में C कैपिटल, CLINTOK. मैक्लिंटॉक discovered transposons in maize plant. लिख के रखो. A small segment of DNA changes its position in the same chromosome or in the another chromosome. As they change the position, as the DNA changes its position, it is called jumping gene. In human being, the jumping genes are called ALU sequence. ALU sequence. Okay, is it over? Yes मैम. Now next 26 से लेके 30 तक करो अभी. 26 to 30.
सिंपल है, इजी है. इजी है. सॉल्व करके हो गए कि बोलो? हाँ मैम. हो गए. हाँ. ओके. एट प्रेजेंट हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट, वो वाला क्वेश्चन 26 वाला. Which, how many are approved for human use? 30. Then next question, in humans, insulin is synthesized as prohormone containing dash, which is absent in mature insulin. C-peptide. Yes, the peptide is absent in, correct. Then next, which of the following organ? Pancreas. Yes, we have studied that. Two polypeptides of human insulin are linked together by Disulfide bridges. yes, disulfide bridge. Now one question, where this phosphodiester bond is present, do you remember? मैम डीएनए में. हाँ डीएनए में, लेकिन कहाँ पे? डीएनए में 3 तरह के बॉन्ड है ना. हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो कहाँ है डीएनए में? मैम 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में. हाँ 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है. एंड नाइट्रोजन बेसेस प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. और वो वाला बॉन्ड कौन सा है? Sugar, to the first carbon of the sugar nitrogen base is attached, it is called as which bond? N-glycosidic bond. Glycosidic bond, correct. Now next question, following are the parts of human insulin except, क्या नहीं है? C-peptide. C-peptide नहीं है, करेक्ट. अभी आगे वाले 5 करो. हो गए सॉल्व करके कि बोलो? हाँ चालू करेंगे. हो गया? हाँ मैम. हाँ 31, एन अमेरिकन कंपनी इली लिली, उसका आंसर क्या होगा? Plasmids of E. coli. प्लाज्मिड्स ऑफ इकोलाई.
32 अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो 32 Gene therapy. जीन Gene थेरेपी therapy. करेक्ट 33 वो भी अभी अभी किया है वही 4-year-old गर्ल Adenosine deaminase. correct adenosine deaminase 34 which of the following cells are used to treat ADA deficiency Lymphocyte. lymphocyte correct ADA deficiency is caused due to Deletion of the gene coding for adenosine deletion deaminase. of gene coding for adenosine deaminase now 36 से लेके 40 तक 4-5 करो Yes, ma'am. हो गया ओके कल के इसमें ना मैं एक बात बोलना भूल गई थी कि वो PBR 322 का डायग्राम है ना अपने बुक में याद है प्लाज्मिड एक है प्लाज्मिड विच इज डिस्कवर्ड बाय बॉलिवर एंड रॉड्रिक्स ऐसा एक ना अपने बुक में टेक्स्ट बुक में और नहीं तो CBSE के बुक में एक डायग्राम है और उन्होंने ना साइट्स बताए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के लिए तो वो जो डायग्राम है ना वो आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी उस पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा सीईटी में तो नहीं पूछेंगे क्योंकि सीईटी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो वो याद रखो डायग्राम नाउ 36 द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन उसका क्या आंसर होगा Genetically engineered lymphocytes are not they are immortal. not they are not immortal huh? Then identify next wala 37 Retroviral vector. retro करेक्ट रिट्रोवायरल वेक्टर अरे अरे क्या हो गया हाँ 38 which of the following is conventional method of diagnosis of disease Serum and urine analysis. serum and urine analysis is done correct then 39 Polymerase Polymerase chain reaction. correct then 40 Eliza follows the principle of antigen antibody. Antigen antibody interaction. antigen Antibody antibody interaction. Interaction.
देन व्हाट इज नहीं 40 हो गए ना, अभी आगे का करो 41 से लेके 45 तक। मैम सीईटी में डायग्राम बेस नहीं आते क्वेश्चन। सीईटी में डायग्राम बेस नहीं आते मीन्स लास्ट ईयर तक आए नहीं थे, अभी कुछ चेंजेस किया है उन्होंने, दिया है नहीं नहीं शायद, मुझे लगता है कुछ नहीं, डायग्राम बेस नहीं आता है सीईटी में। लेकिन नीट में जो आएगा ना डायग्राम बेस, वो पूरे सीबीएसई के डायग्राम पे आएगा। सो इवन फॉर चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बाद में प्लांट किंगडम में जो अलगी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जो डायग्राम्स सीबीएसई के बुक में है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। मीन्स अभी समझो अलगी में वॉलबॉक्स है, कारा है, उनके बुक में सीबीएसई के, हाँ, तो वो डायग्राम आ सकते हैं आपको। और ऐसे भी हो सकते हैं कि 4 डायग्राम देंगे और उसका नाम ऐसे अलग अलग सीक्वेंस में देके विच इज करेक्ट वो पूछेंगे, नहीं तो एक ही डायग्राम देके 4 नाम देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज दैट, वैसे भी पूछते। तो अलगी, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये पूरे डायग्राम्स, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के जो डायग्राम्स है, फंगाई, वायरस, लाइकेन, नहीं तो उसके पहले किंगडम प्रोटिस्टा, मोनेरा, जो है ना डायग्राम्स, वो सब याद रखो, क्योंकि लेबलिंग करने को शायद नहीं पूछेंगे ये अलगी वगैरह, लेकिन आपको वो याद रखना पड़ेगा। बट यू नो दैट इन द बिगिनिंग यूग्लिना, पैरमेशियम, वो लेबलिंग के लिए पूछ सकते हैं। मीन्स XYZ PQR ऐसे कुछ नाम देंगे, और व्हाट इज PQR, नीचे ऑप्शंस होंगे तो आपको फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट, all the diagrams which are there in 11th and 12th standard book of CBSE you are supposed to remember. तो वो भी वैसे भी प्रैक्टिस करो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की, अपने क्लास के टेस्ट में देते हैं ना डायग्राम्स। हाँ मैम। हाँ बराबर, और अपने बुक के याद रखने की जरूरत नहीं, सीबीएसई के ध्यान में रखो, हो गए। और 90% क्वेश्चंस आर फ्रॉम सीबीएसई ओनली, रिमेम्बर। 41 क्वेश्चन नहीं करना है आपको, 41 बराबर नहीं है ऑप्शन। मैं क्या बोल रही थी कि सीबीएसई ना एग्जैक्ट सेंटेंस वैसे का वैसे लेते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो सीबीएसई का बुक बहुत बार पढ़ो, और अपने बुक में से मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, कोई चैप्टर्स है ना अपने बुक में अच्छे, 11 के खास करके अपने बुक में अच्छे, उनके बुक में अच्छे नहीं है, तो यो भी करो। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट किंगडम का याद है, 3 टाइप के दिए ना, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो वो तीनों डायग्राम याद रखो, वो भी पूछते हैं कभी कभी कि हैप्लॉन्टिक किस में मिलता है, डिप्लॉन्टिक किस में मिलता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस में मिलता है। आपने किया है ना वो किंगडम प्लांटिक का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? हाँ मैम किया है। तो वो भी कभी कभी पूछते हैं, मीन्स वो डायग्राम देते हैं और बीच में कुछ तो नहीं देंगे और आपको वो लिखना है मीन्स ऑप्शन में देते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम बेस्ड, तो वो भी डायग्राम आपको करना है। नो क्वेश्चन 42, ऑटोरेडियोग्राम। at 42 in which of the following technique SSDNA आगे का दिखाई नहीं दे रहा है, it's stacked with radioactive probe, autoradiography, then identify the technique used for detection, जो कुछ लिखा है वो मुझे दिखाई नहीं देता है, उसका आंसर PCR। Then 44, when genomic DNA is fragmented and cloned, the screening of the desired gene is done by DNA probes. DNA probe। देखो ये मुझे लगता है हमारे ना जीन लाइब्रेरी में दिया है ये शायद। Then presence of pathogenic antigen in human can be detected by Enzyme link. enzyme link immunosorbent assay। करेक्ट, आगे के करो 5 क्वेश्चन।
हो गया मैम. हाँ, तो अभी 46 ही ना. मोलेकुलर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज इन्वॉल्व द यूज ऑफ. All of the above. Yes. Next one, which of the following transgenic animal exists in large number? Mice. Mice, बराबर. Which of the following human protein is produced in? अरे बाप रे, रुको. क्या है वो क्वेश्चन मेरा लैपटॉप? रुको. हाँ, एकदम बड़ा हो गया, अभी छोटा करना है मुझे. एक मिनट. हाँ, हो गया. Which of the following human protein is produced in transgenic cow, Rosie? Alpha lactalbumin. हाँ, alpha lactalbumin, correct. Then dash of, ये मुझे पता नहीं है, 29 वाला आंसर. Of alpha lactalbumin is present in the liter of milk of transgenic cow, Rosie. ये दिया है अपने बुक में? CBSE के दिया है क्या है? हाँ, उसमें? मैंने देखा नहीं, 2.4 क्या है उसके आंसर? 49 का 2.4 grams. अच्छा, लास्ट डी. अच्छा, हाँ, दिया है वो. हाँ, CBSE में दिया है. अच्छा, मुझे याद नहीं है. Then protein alpha 1 antitrypsin is used to treat. emphysema. Okay, then match the columns. ये हम लोगों ने नहीं किया है ना 51 वाला. ऐसे वाला नहीं है शायद अपने बुक में. है मैम. हाँ, CBSE में है. तो आप हाँ बोल, मैम, CBSE में है. CBSE का बुक मुझे बाहर तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम बार पढ़ती हूँ CBSE का बुक. और मेरे पास जो कॉपी है ना वो 2006 की है. 2006 यानी सोचो अभी कितने साल हो गए ना. 5-6 साल तो हो गए, नहीं ज्यादा ही. 21 हो गया अभी. तो उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ है 2006 में. हाँ मैम. क्या आंसर है इसका? ऑप्शन डी. हाँ, करेक्ट है ना. आपने देखा ना, क्योंकि मेरे बुक में मेरा ओल्ड कॉपी है तो उसमें नहीं है ये. मेरे पास 2006 वाला कॉपी है. आपके पास कौन सा है? अभी रिसेंट होगा ना, हाँ मैम. क्योंकि मैंने बहुत साल पहले लिया था इसलिए मेरे पास नहीं है. और अभी मैंने लिया ही नहीं. मैंने सोचा कि अभी ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे. 52. Which body of the government of India regulate GM? Easy है. Genetic engineering. Approval committee. Correct. 53. Option D. Yes, correct. 54. Simple. Rice. 55. Easy है. Basmati. नहीं, all of the above. All of the above. नीम, टर्मरिक सबके ऊपर हो गया ना बायोपेटेंट का वो केसेस. 55 में all the three. 56. Biopiracy refers to. ऑप्शन सी. Yes, correct. 57. बायोपायरेसी. Yes. 58. Basmati. Correct. Then 59. गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री. हाँ, गवर्नमेंट. करेक्ट. 60. टाइम है ना? वो नहीं है. टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया. टाइम हो गया है. हाँ मैम. हाँ, तो अभी देखो ये चैप्टर आप कंप्लीट करो. जो डाउट है वो पूछो. और सेकंडली, कल मैं लेक्चर लेने वाली नहीं हूँ. सैटरडे संडे तो छुट्टी रहती है.
Now I require 6 more lectures. कैसे काउंट करेंगे?